Dear all, today I am going to discuss a very important topic of the quantitative aptitude, that is number system. Number system is basically the grammar of mathematics or quantitative aptitude. You need to be very good at number system. This topic is very close to my heart. I love solving number system question and I love to share, whatever the tricks and techniques, consists of number system to my fellow students. So today it's a very vast topic. Means there are a lot of concept of number system. There's so many subtopics. So it is going to be a series of videos for this number system. Today I am going to discuss the divisibility part of this number system, means finding out whether a number is divisible by certain numbers or not. Let us take an example. Start with an example. 2, 1, 3, 2, 4. Is this number divisible by 2? Most of you know the answer. Yes, it is divisible by 2. Why? Because the last digit is, or unit place digit is divisible by 2. So to find out whether a number is divisible by 2 or not, what we have to see, look after the unit place digit. If it is divisible by 2, that means this number is divisible by 2. Is this number divisible by 4? Yes, this number is divisible by 4. How could I say that? Because the last 2 digits of this number is divisible by 4. So my next question is this number divisible by 8? Your answer may be yes, it is divisible by 8, but it is not. Why? Because this number is not divisible by 8 because the last 3 digits of this number is not divisible by 8. Now one question is coming into your mind. Sir, if a number is divisible by 2 and a 4, it means it must be divisible by 8. No. But vice versa is true. Means if a number is divisible by 8, then it must be divisible by 2 and 4. So the trick is, for 2 you have to find out unit place digit, whether it is divisible by, the unit place digit is divisible by 2 or not. For 4, this is 4, 2 ka square 4, so last 2 digits. 2 ka cube is 8, so last 3 digits. If I have to find out whether the number is divisible by 16 or not, what is this? 2 to the power 4, so last 4 digits must be divisible by 16. So this is a trick for finding out whether a number is divisible by 2, 4, 8, 16, so on and so forth. Moving next. Whether a number is divisible by 3 or not. Let's take an example. 3, 1, 4, 3, 2, 5, 6, 3, 2, 1. Is this number divisible by 3 or not? बचपन से आपने सीखा हुआ है, कुछ नहीं करना है, इसके सारे डिजिट्स का सम कर लो. अगर सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा. 3 1 4 4 8 8 3 11 2 13 13 5 18 18 6 24 3 27 2 29 31. 30 is divisible by 3, so this number is divisible by 3. लेकिन सर मैं आपको कुछ नया सिखाता हूँ. नया कुछ ऐसा है, नया सिर्फ तरीका नया है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है. सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. तो मैं सम नहीं करूंगा, मैं 3 और 3 के मल्टीपल का पेयर बनाऊंगा और इसको काटता जाऊंगा. अगर सारे डिजिट्स कट गए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो 3 से डिविजिबल है. अगर कोई डिजिट बच गया तो इसका मतलब वो डिविजिबल नहीं है. मैं करके दिखाता हूं. सर 3 कट गया, ठीक है, ये 3 गया, 4 2 6 गया, 6 इज डिविजिबल बाय 3. 5 और 1 6 गया, 6 गया, 3 गया और 2 और 1 3 गया. इसका मतलब है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3. एक और एग्जांपल लेते हैं. 3 1 4 5 9 7 3 4 4 2. Is this number divisible by 3? सर मैं 3 और 3 के मल्टीपल को
पेयर बना बना के कट करते जाऊंगा। 3 गया, 5 4 9 गया, 9 गया, 7 और 2 9 गया, 3 गया, 4 4 8 और 1 9 गया। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सर एक और एग्जांपल में लेता हूं, 4 5 3 2 4 1। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 3? क्या करना है, 3 और 3 का मल्टीपल ढूंढना है और कट करते जाना है। 5 और 4 9 गया, 3 से 3 गया, 4 2 6 गया, 1 बच गया। इसका मतलब है कि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ट्रिक इज, ये जो नंबर बच गया है, बेसिकली अगर आप इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये जो नंबर बचा हुआ है यही उसका रिमाइंडर भी होगा। ठीक है, जो डिजिट बच गया वो उसका वो रिमाइंडर होगा। अगर आप 2 डिजिट बच जाता तो उसको सम कर लेते, वो उसका रिमाइंडर होता। यहां तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। मूविंग नेक्स्ट, सर 2 4 3 8 इसका सीख लिया आपने। अब मैं बात कर रहा हूं 5 की। बहुत ही आसान है, नंबर्स विच एंड्स विथ 0 एंड नंबर्स विच एंड्स विथ 5 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। एकदम सिंपल है। 10 0 से एंड कर रहा हो या 5 से एंड कर रहा हो तो 5 से डिविजिबल होगा। सर बात करता हूं 6 की। 6 का भी आसान है। सर 6 के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट कि ये नंबर 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल हो। जैसे मैं कोई नंबर लेता हूं 2 1 3 4 5 3 2। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 6? 6 के लिए आपको क्या करना है, 6 के लिए आपको 2 और 3 से देखना है। तो पहले मैं इसको 2 से चेक कर लिया, लास्ट डिजिट इज यूनिट प्लेस डिजिट इज 2, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। 3 से डिविजिबल है या नहीं है, वही ट्रिक, पेयर बना बना के कट करते चलेंगे। 2 1 3 गया, 3 गया, 5 4 9 गया, 3 गया, 2 बच गया। इसका मतलब है कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। चूंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 2 से लेकिन है, इसका मतलब है कि ये 6 से नहीं है। 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है। ठीक है सर, अगला करते हैं। अभी तक जो आपने सीखा है ये आपको पहले से भी आता रहा होगा। अगला जो आपको ट्रिक में सिखाऊंगा वो काफी क्रूशियल है और एग्जाम में उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वो है 11 13 9 7 7 9 11 13। ठीक है, पहले 9 का सीख लेते हैं, फिर 7, फिर 11 का सीखेंगे, फिर 7 एंड 13 का, वो कॉमन है। तो 9 के लिए भी सेम है, जो 3 के लिए था वही 9 के लिए भी है। जैसे मैंने लिया 9 6 3 7 2 1 5 8 3। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 9 और नॉट? तरीका, बेसिक तरीका क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। ठीक है, सम करके देखते हैं। 9 6 15 15 3 18 18 7 25 2 27 1 28 28 5 33 28 5 33 33 और 3 36 36 और 8 44। तो 44 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। अच्छा, इसको सम करने में काफी टाइम लग रहा था, राइट? तो मैं क्या करूंगा, 9 और 9 के मल्टीपल का पेयर बनाऊंगा और इसको कट करता चलूंगा। सर 9 गया, 6 2 6 3 9 गया, 7 2 9 गया, 8 और 1 9 गया, क्या बचा हमारा 8। सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, क्योंकि कुछ रह गया तो इसका मतलब 9 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, बेस्ट पार्ट वंस अगेन कि जो ये नंबर बच गया है सर यही उसका रिमाइंडर भी होगा। अगर ये पूछ दे कि इस क्वेश्चन को, इस नंबर को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो आपका आंसर हो गया 8। तो एक ही मेथड से दो चीज सीख गया। 9 का एक और एग्जांपल लेते हैं। 9 7 2 1 3 5 7 2। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 9? सर 9 गया, 7 और 2 9 गया, 5 3 8 और 1 9 गया। जरूरी नहीं है कि 2 का ही बनाना है, 3 का भी बना सकते हैं। और 7 और 2 9 गया। इसका मतलब है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। सर 11 का सीखते हैं।
11 का। सर क्या करना है? 2 1 3 4 0 1 2 3 1 इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 11? सर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये पहले से पता हो, आप इसको फिर से सीखिए। कुछ नहीं करना है, ये सारे जो नंबर्स हैं उनके प्लेसेस देखने हैं हमें, ऑड प्लेस और इवन प्लेस देखना है। उसके हिसाब से वो डिजिट्स हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और ऑड प्लेस के डिजिट का सम करेंगे, इवन प्लेस के डिजिट का सम करेंगे और बड़े से छोटे को घटा लेंगे और जो नंबर आएगा उसको 11 से डिवाइड करके देखेंगे वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट। मैं इसको करके दिखाता हूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सर ये है नंबर हमारा, ठीक है, ये पहला नंबर है तो इसको मैंने लिखा ऑड प्लेस। ये जरूरी नहीं है 1 1 के लिए नहीं लिख रहा हूं मैं, यहां 2 भी होता तो भी मैं ऑड ही लिखता। क्यों? क्योंकि मैं प्लेस की बात कर रहा हूं, पहला प्लेस तो ऑड प्लेस। ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड। ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे। ठीक है, ऑड प्लेस के सारे डिजिट्स का सम कर लेते हैं। 2 1 3 3 3 6 2 8। ऑड प्लेस के डिजिट का सम हो गया 8। इवन प्लेस के डिजिट का सम करते हैं 3 1 4 4 8 8 1 9। बड़े वाले से छोटे वाले को घटा लिया, क्या वैल्यू आई? 1। सर इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 11? 1 is divisible by 11? No. So this number is not divisible by 11. सिंपल है, पेपर में आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं 11 का ही। सर 2 1 3 0 1 4 5 7 3 2 1 is this number divisible by 11? क्या करना है फिर से? ये हमारा ऑड प्लेस, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन, ये ऑड। ऑड प्लेस के सारे डिजिट का मैं सम करूंगा। 3 1 4 4 5 9 9 1 10 10 3 13 13 2 15। इवन वाले के सारे डिजिट का सम करूंगा। 2 7 9 9 4 13 13 और 1 14। बड़े वाले से छोटे वाले को घटा लिया, वैल्यू आई 1। Is 1 divisible by 11? No. So this number is not divisible by 11. सर 11 से पूछा तो 22 का भी निकल सकता है। 22 के लिए क्या करना है? 2 से चेक करना है और 11 से चेक करना है। 2 का आपको पता है, 11 का आपको पता है, आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में आ गया 33 से डिविजिबिलिटी का। सर क्या करना है? 3 से चेक करना है, 11 से चेक करना है। अगर दोनों से हो रहा है तो 33 से भी होगा। 88 से आ गया, 8 से चेक कर लीजिए, 11 से चेक कर लीजिए, दोनों से हो रहा है, इसका मतलब नंबर 88 से डिविजिबल है। तो बहुत ही सिंपल है, पेपर में आता है। सर आगे बढ़ता हूं। आज की क्लास का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट, सबसे बेहतरीन चीज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो अभी है। पेपर में आता है 7 and 13 का और उसके मल्टीपल का डिविजिबिलिटी पूछता है। ठीक है, 2 3 4 का पूछना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अदरवाइज आपको ये आएगा 7 11 13, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। 7 और 13 का सीखते कैसे होता है। 2 1 3 4 0 1 2 3 4 1 2 is this number divisible by 7? सर आपको कई तरीके बताए गए हैं अलग अलग बुक में, लेकिन ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है, तो आप इसको सीखिए, ये बहुत काम आएगा आपके। सर आपको क्या करना है, 11 जैसे ही चलेगा इसमें, यहां पे मैं पेयर बनाऊंगा या ग्रुप बनाऊंगा 3 डिजिट्स का। ठीक है, और फिर हम उसको काउंट करेंगे, ऑड पेयर, इवन पेयर, ऑड पेयर, इवन पेयर, फिर से प्लेस ही होगा वो। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं। सर 3 की ग्रुप बनानी है और हमेशा इधर से शुरू करना है। 3 का ग्रुप बनाया, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अच्छा ये तो रह गया, क्या करें सर? कुछ नहीं करना, 0 लगा देना। ठीक है, ये पहला ग्रुप है ऑड, ये दूसरा ग्रुप है इवन, ये तीसरा ग्रुप है ऑड, ये चौथा ग्रुप है इवन। ऑड वाले को
और ऑड वाले को जोड़ देंगे, इवन वाले को जोड़ देंगे और बड़े से छोटे को घटा लेंगे। तो मैं पहले ऑड वाले पेयर को ग्रुप को जोड़ रहा हूं, 412 और 134 नॉट 340, 412 और 340, तो 2 4 1 5 और 3 4 7 752 हो गया। और ये हो गया 123 प्लस 21 कर रहे हैं हम, ऑड वाले को जोड़ रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 144। अब मैं क्या करूंगा, बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दूंगा, ठीक है, 8 4 12, ठीक है, ये हो गया आपको 0 और ये आ गया 7 - 1 6, तो मेरे पास क्या आ गई 608 वैल्यू आ गई। अब 608 को मैं डिवाइड करके देखूंगा किससे, 7 से। इफ 608 इज डिविजिबल बाय 7, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। 7 × 56 48 नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। सर एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं। Five 4 0 1 2 3 0 1 2 1 is this number divisible by 7? क्या करना है, फिर से ग्रुपिंग करनी है, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, और ये अकेला हो गया है तो मैं डबल 0 लगा देता हूं। ये हो गया मेरा ऑड, ये हो गया इवन, ये हो गया ऑड, ये हो गया इवन। प्लेसेस पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप, इसलिए ऑड इवन। अब मैं ऑड वाले को सम कर देता हूं, तो 540 और 121 कितना हो गया, 6 6 1, ठीक है, 540 और 121 6 6 1। सर 230 और 5 235, बड़े वाले से छोटे वाले को घटाना है, ये जो मैंने घटा दिया, ये है 6 5 11, ये हो गया 5 में से 3 गया 2 और 6 में से 2 गया 4, 426 आया। अब मैं 426 को भाग दूंगा किससे, 7 से, और चेक करूंगा वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट। 7 6 42, 6 बच गया भाई साहब। इसका मतलब है कि ये नंबर, ये जो हमारा नंबर है, ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। सर बढ़िया बढ़िया ट्रिक है, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। And the best part about this trick is this is applied for 13 as well. आपको 13 से पूछ दे तो भी आप निकाल सकते हैं, सेम तरीके से निकाल सकते हैं, बस लास्ट में आपको 13 से डिवाइड करना है। थर्टीन का देखिए, 213017321 इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 13? कुछ नहीं करना है, फिर से ग्रुपिंग करनी है, 3 के पेयर बनाने हैं, ग्रुप बनाने हैं। पहला ग्रुप बनाया, दूसरा ग्रुप बनाया और ये तीसरा ग्रुप बन गया, ठीक है। चूंकि ये पहला ग्रुप है तो ऑड, दूसरा ग्रुप है तो इवन, तीसरा ग्रुप है तो ऑड। मुझे ऑड वाले को सम करना है और इवन वाले से घटा लेना है। उल्टा भी कर सकते हैं, बड़े से छोटे को घटा सकते हैं। 321 जोड़ 213, 3 1 4 2 1 3 3 2 5 534, और इवन वाला मेरा अकेला ही है, कोई नहीं, 017 यहां लिख दिया, ठीक है। सर ये हो गया 517 माइनस किया तो अब ये जो आंसर आया है इसको आपको 7 से नहीं 13 से डिवाइड करना है। इसको देखिए कि क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 13 से डिविजिबल है तो ये भी 13 से डिविजिबल होगा। आप लीजिए, देख लीजिए, 13 × 39, 13 × 4 52, 13 × 39 ले लिया, 12 बचा 127, 13 से 127, 13 दूनी 26, 9 × 27, 9 × 9 नहीं होगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो चूंकि ये डिविजिबल नहीं है 13 से, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है 13 से। काफी बेहतरीन ट्रिक है ये काम आएगा आपको। तो आज आपने सीखा
2 से डिविजिबिलिटी, 4 से, 8 से, 16 से, वो वाली पूरी सीरीज। फिर आपने सीखा 3 से पेयर बना करके कट करना वाला। 5 का आपको आता ही होगा, मैंने बताया ऐसे भी 0 और 5 से एंड कर रहा हो तो 5 से डिविजिबल होगा। फिर मैंने आपको 6 का बताया, 2 और 3 से डिविजिबल हो तो 6 से है। फिर मैंने आपको बताया 9 का, पेयर सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, नहीं तो आप पेयर बना के 9 और 9 के मल्टीपल का काटते जाइए। मैंने उसके बाद सिखाया 11 का, ऑड प्लेस इवन प्लेस के डिजिट वाला। फिर मैंने आपको बताया सबसे जबरदस्त ट्रिक 7 और 13 का, वो क्या है, 3-3 की ग्रुप बनाइए, पेयर कीजिए और उसमें ऑड और इवन प्लेस डालिए और ऑड वाले को सम कीजिए, इवन वाले को सम कीजिए और उसमें से माइनस करके देख लीजिए कि वेदर इट 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो 7 से डिविजिबल है या 13 से डिविजिबल है तो आपका ओरिजिनल नंबर भी 7 और 13 से डिविजिबल होगा। थैंक यू।